Hello everyone, welcome to my YouTube channel Get Smart with CA Mohini. My name is Mohini Kadipalli. I am a chartered accountant by profession. We are going to start with our first topic, which is understanding residential status in India. Okay, now let's continue with our topic. As per Income Tax Act 1961, Section 6 states the provision for residence in India. Before starting with Section 6, we'll understand some basics. First, total income of an assessee cannot be determined without knowing his residential status. What does it mean? अगर किसी इंडिविजुअल का टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा तो हमें उनका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना बहुत ज़रूरी है. विदाउट नोइंग हिज रेसिडेंशियल स्टेटस वी कैन नॉट डिटरमाइन हिज टोटल इनकम. सेकेंड, scope of total income is based on his residential status. Third, if any person become resident, then his whole world income is taxable in India. But if a person become non-resident, then only Indian income is taxable in India. चलो इसको समझते हैं. अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया का रेसिडेंट बनता है तो पूरे वर्ल्ड में वो जितना इनकम कमाता है वो पूरा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा. और अगर वो नॉन रेसिडेंट बनता है देन ओनली इंडियन इनकम विल बी टैक्सेबल इन इंडिया. नेक्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर ईच प्रीवियस ईयर इंडिपेंडेंटली. रेसिडेंशियल स्टेटस हमें हर एक इंडिविजुअल के लिए हर साल निकालना ज़रूरी है. Okay, now the important part. Listen very carefully. The question is how to determine the residential status. As per Section 6(1), we have two basic conditions. ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है to become resident in India. Okay, let's read. First, stay in India for 182 days or more in a previous year. हमारे लिए प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? प्रीवियस ईयर 2023-2024 और असेसमेंट ईयर रहेगा 2024-2025. सेकेंड बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया फॉर 60 days or more in a previous year and 365 days or more in preceding 4 previous year. इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे और लिखा है. चलो इसको समझते हैं. अगर कोई इंडिविजुअल 182 डेज और उससे ज़्यादा दिनों के लिए इन अ प्रीवियस ईयर इंडिया में रहा हो और 60 डेज और उससे ज़्यादा दिनों के लिए अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो एंड यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. And 365 days or more in 4 previous preceding years, then that individual would be treated as resident in India. इन दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है. और ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब ये दोनों भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना ज़रूरी है तो ही सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. I think this is clear. Now we have already discussed about this topic. Let's read. If an individual satisfy any one basic condition as per Section 6(1), then he is treated as resident. Otherwise, he is treated as non-resident. Now, the important part. If an individual becomes a resident, then we have to check the additional conditions to determine whether an individual is ROR or RNOR. ROR और RNOR का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे दिया है नीचे, आप देख सकते हो. ROR का फुल फॉर्म है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. RNOR का है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. To decide whether an individual is ROR or RNOR, then we have to check the additional conditions. Additional conditions as per Section
6. We have two additional conditions. First, resident for 2 previous years or more in preceding 10 previous years, and 730 days or more in preceding 7 previous years. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई इंडिविजुअल पिछले 10 सालों में अगर 2 साल के लिए भी इंडिया में रहा हो, एंड यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, एंड पिछले 7 सालों में अगर 730 डेज और उससे ज़्यादा दिनों के लिए अगर इंडिया में रहा हो, देन दैट इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज ROR। और अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई या फिर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, then that individual would be treated as RNOR. I think this is clear. Okay, now basic condition number 2 should be ignored in the following 3 cases. बेसिक कंडीशन नंबर 2 जो है वो इन 3 केसेस में हमें इग्नोर करनी होगी, और वो बेसिक कंडीशन नंबर 2 जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. दिस वन, stay in India for 60 days or more in a previous year and 365 days or more in preceding 4 previous year. ये जो है ये हमें इग्नोर करनी होगी इन 3 केसेस में. चलो इसको पढ़ते हैं. फर्स्ट, an Indian citizen leaves India during the previous year for the purpose of an employment outside India. अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के आउटसाइड इंडिया फॉर एन एम्प्लॉयमेंट जा रहा हो और गया हो, देन उसके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. हमें सेकेंड बेसिक कंडीशन इग्नोर करनी होगी. सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन दैट इज़ 182 डेज और मोर इन इंडिया, सिर्फ यही बेसिक कंडीशन हमें चेक करनी होगी. ये हो गई हमारी फर्स्ट केस. सेकेंड, एन इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. अगर कोई क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, अगर वो इंडिया छोड़ के आउटसाइड इंडिया गया हो, देन हमें सेकेंड बेसिक कंडीशन इग्नोर करनी होगी. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन engaged outside India in an employment or business or profession and visiting India during the previous year and his total income excluding IFS is up to 15 lakhs in a previous year. IFS का फुल फॉर्म है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स. An Indian citizen or a person of Indian origin. What do you mean by person of Indian origin? Person of Indian origin means a person who or either of his parents or grandparents were born in an undivided India. अगर इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आउटसाइड इंडिया अगर एंगेज हो और वो सिर्फ इंडिया में विजिटिंग के लिए इन ए प्रीवियस ईयर आए हो और उनका टोटल इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स छोड़ के अगर सिर्फ 15 लाख रुपीस तक है, then in that case we have to ignore the second basic condition. Okay, now this is also a very important part. यहाँ पे हमने देखा था अभी, अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के अगर अप टू 15 लाख्स होगा, देन सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. बट व्हाट इफ अगर इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगी, उसके लिए हमें यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया है which is very very important. Let's read it. In case of an Indian citizen or a person of Indian origin having total income other than foreign source income of more than 15 lakhs, then second basic condition is applicable. यहाँ पे second basic condition applicable हो जाएगी, and instead of 60 days in a previous year 120 days are considered. यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिनका टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा रहेगा, देन
सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे आपको सेकेंड बेसिक कंडीशन दिखाती हूँ। ये जो सेकेंड बेसिक कंडीशन है ये एप्लीकेबल हो जाएगी और ये जो 60 डेज़ है वो हटा के उन्होंने 120 डेज़ कर दिए हैं। 120 डेज़ मतलब सेकेंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी जब इनकम 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा रहेगी तब। अभी मैंने यहाँ पे एक समरी दी है। अभी यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। समरी which is important. First, if an Indian citizen or a person of Indian origin having total income excluding foreign source income is more than rupees 15 lakhs, अगर टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के मोर देन 15 lakhs रहेगी, then first, if he visit India for less than 120 days, then he is treated as non-resident. मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो है 182 डेज और मोर एंड सेकंड कंडीशन जो है 120 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग ईयर। फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज की भी सेटिस्फाई नहीं हो रही और सेकंड भी नहीं हो रही, देन दैट इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। सेकंड, if you visit India for more than 120 days but less than 182 days, then he is treated as RNR. मतलब फर्स्ट बेसिक कंडीशन 182 डेज की सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, देन बेसिक कंडीशन में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, देन दैट इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, सिर्फ सेकंड बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही, देन दैट इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अभी यहाँ पे फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इस केस में हमें एडिशनल कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू चेक एन एडिशनल कंडीशन। थर्ड, इफ़ he visit India for more than 182 days, then he is treated as resident. मतलब जो हमारी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है 182 डेज और मोर की वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, देन इन दैट केस एडिशनल कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी टू डिसाइड वेदर एन इंडिविजुअल इज ROR और RNR. Now, Section 61A, deemed resident. In case of an Indian citizen having total income excluding foreign source income exceeds rupees 15 lakhs during the previous year, that individual would be deemed to be resident in India if he is not liable to tax in any other country. What does it mean? अगर कोई इंडियन सिटीजन जिसका टोटल इनकम फॉरेन सोर्स इनकम को छोड़ के 15 लाख रुपीज से ज़्यादा रहेगा और वो इंडियन सिटीज़न दूसरे किसी भी कंट्री में टैक्स भरने के लिए लाइबल नहीं रहेगा, देन दैट इंडिविजुअल वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया. I think this is clear. This was our small video on residential status. Thank you for watching this video.